Devo Bhava, a legacy followed by Indian culture. And we at all over here are following this. Let's welcome him with full clap. Say Om Tat Sat Om. So with this, I welcome our chief guest and our guest speaker to continue and give his words of wisdom with us. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Nice. Thank you. So, first and foremost, I thank the management and the school to have invited me for this occasion. मैं ना जब आप जितना था ना, आप लोगों के जितना छोटा सा बच्चा, तब मैं यहाँ पे पहली बार आया था इस परिसर में और I have seen the construction of your school building. So being there, such a small boy, seeing all this building being built up and finally being invited on this dais, it's a very special occasion for me. वैसे आज कौन सा दिन है? 12th January. What is 12th January? Swami Vivekananda ji's birthday. Who was Swami Vivekananda? Who was Swami Vivekananda? He was a social reformer. And he was one of the biggest patriots of his time. उनके जितना देश को प्रेम करने वाला इंसान था नहीं. स्वामी विवेकानंद क्या कपड़े पहनते थे? सैफरन कलर के कपड़े पहनते थे. क्यों? वो क्या थे? एक सन्यासी थे. वो एक सन्यासी मतलब क्या? सन्यासी मतलब कौन? उन्होंने सैफरन कलर के रोब्स क्यों पहने थे? क्या? कौन बता पाएगा? यहाँ पे नहीं बता सकते स्टूडेंट्स. हु इज अ सन्यासी? Same, but what does he do or what does she do? A sannyasi or a sannyasin? A sannyasi or a sannyasin, what does he or she do? कौन बता पाएगा? सन्यासी हाँ, चलो बताओ, कौन बता पाएगा? सन्यासी कौन होता है? People who do meditation and leave all the worldly affairs. Yes, meditation तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सन्यासी somebody जो सारे worldly affairs छोड़ देता है. What do you mean by worldly affairs? I can hear you. Say. Like money and any modern things. Yes. So a sannyasi is somebody who gives up the worldly life. For example, आज मैं सेल फोन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी बैग है, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ. And I want to keep my hair very properly, I want to keep my beard trimmed, shape it. मुझे अच्छा खाने की इच्छा होती है तो मैं रेस्टोरेंट चले जाता हूँ. सन्यासी मतलब ये सब कुछ हमने छोड़ दिया है. क्या वो छोड़ दिया है? मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ. मैंने लोगों की सेवा करनी है करके मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया. तो मुझे जो खाना मिलेगा वो मैं खाऊंगा. मैंने ये सैफरन क्लोथ्स ही पहने हैं, मेरे को सेंस ऑफ फैशन है ही नहीं कुछ. ठीक है. सो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था. he had sacrificed money, he had sacrificed his family. Sannyasis don't live with a family. They live in mutts without their families. They have other sannyasis they stay with. They cook their own food, they clean their own plates, and they live what is called as a very Spartan kind of a life. So that was Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा मैसेज दिया था. उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे, बट आप लोगों को पता है उनके मैसेजेस क्या क्या थे? एनीबडी नोस स्वामी जी's quotations? आई एम प्रीटी श्योर इट इज देयर इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. Swamiji said something about service.
Does anyone remember? Swamiji said, service to man is service to God. अरे याद है फिर बताओ? So Swamiji said, service to man is service to God. उन्होंने क्या बोला? About 100 years ago की बात चल रही है, 120 years ago की बात चल रही है. उस समय भारत में बहुत गरीबी थी, लोगों को डिजीजेस होते थे, और स्वामी जी को ये देख के बहुत दुख होता था. And then Swamiji used to see people are praying to God, they are spending money on religious festivals. तो उनका बोलना था कि आप लोगों की सेवा करो, और जब आप लोगों की सेवा करोगे वही भगवान की सेवा होगी. उन्होंने और एक बड़ा मैसेज दिया संस्कृत में, उत्तिष्ठः जागृतः प्राप्यवरा निबोधतः. इंग्लिश में, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड. He also said one thing, take up one idea, give it all you got and it will become true. बाद में उनका एक जो भाषण हुआ, आपको पता है शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद. उनका भाषण की शुरुआत पता है आपको क्या थी? क्या थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोले? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. सब लोग बोल रहे हैं, वाह, सबको अच्छा नॉलेज है. अब जनरली अमेरिका में भाषण की शुरुआत कैसे होती है? लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरुआत होती है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन मतलब क्या? यू आर अ लेडी, यू आर अ जेंटलमैन. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का मतलब क्या? आप मेरे भाई हो, आप मेरे बहन हो. तो अमेरिका में ऐसे किसी के मन में भी नहीं था कि एक फॉरेन देश से आदमी आएगा, इंडिया से, दूर से. उस टाइम पे एरोप्लेन भी नहीं था, उस टाइम स्टीमर से आना पड़ता था. जहाज से, स्टीमर से एक आदमी आएगा, सैफरन रोब में रहेगा, जिसने पूरा दुनिया सब कुछ छोड़ दिया है, वर्ल्डली अफेयर्स छोड़ दिए हैं, और हमको यहाँ पे आके बोलेगा मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों. ये ग्रेट बात कही क्या स्वामी जी ने? ग्रेट कही. बट was it Swamiji's greatness or was it Indian culture's greatness? Indian culture. Why? Indian culture taught it. Why? Because Indian culture tells to. Because Indian culture tells us that Swamiji was just following Indian culture. For example, even if हिंदी में कोई भाषण देता है तो भाइयों और बहनों, बहनों और भाइयों ऐसे ही बात करते हैं ना. हमारे हिंदी के भाषण में ऐसा नहीं होता ना, पुरुष और स्त्रियों. हम बहनों और भाइयों ही बोलते हैं. So it's a part of our culture, and Swamiji was only representing our culture. Now some interesting facts about Swamiji and the city which you are a part of. I was telling you about this address 1893 शिकागो में जो हुआ. I told you that Swamiji traveled by a steamer. Those big boats were called as steamers. Did you know from where did Swamiji travel to Chicago? Which part of India did Swamiji take that steamer from? किसी को नहीं पता? महाराष्ट्र? Which part of Maharashtra? Which part of India or which part of this country did Swamiji travel to Chicago from? Nobody knows. No guesses. We traveled from Mumbai, right? Which part of Mumbai? Gateway of India. अरे वाह, तालियां बजाओ उसके लिए. How many of you have been to Gateway of India? Raise your hand. So many of you have been to Gateway of India. Still you didn't know the historic importance of Gateway of India. हाथ नीचे. Gateway of India में कुछ है क्या जहाँ पे आपको मालूम पड़ता है, जो एक मेमोरी है स्वामी जी की जर्नी का? Does anything exist on Gateway of India today? What? Which reminds you of Swamiji's journey. जो जब स्वामी जी ने ट्रैवल किया ना मुंबई से शिकागो, तब गेटवे ऑफ इंडिया नहीं था. गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट आफ्टर दैट. उस टाइम पे इट वाज अ डॉक जहां से बोट्स निकलते थे. आज वो याद में, उनकी मेमोरी में वहां पे आपको एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू दिखेगा.
That statue is to remind you that Swami ji यहाँ से शिकागो के लिए निकले थे. So next time when you go to Gateway of India, you click a picture with the gateway, but don't forget to click a picture with that Swami Vivekananda ji statue, which reminds you of that journey which he made from Mumbai to Chicago. Second interesting aspect is Swami ji, when he came to Mumbai, he wanted to build a university in Mumbai. Did you know that? Can you guess which place did he want to build that university in? I'll give you a hint. It is in Borivali. नहीं, no guesses. बोरीवली में कहाँ पे यूनिवर्सिटी बांधने की इच्छा होगी उनको? Have you been to National Park? How many of you been to Sanjay Gandhi National Park? The yellow kurtas have not been anywhere. Huh? How many of you been to Sanjay Gandhi National Park? सिर्फ बच्चे लोग जाते हैं, बड़े बच्चे नहीं जाते नेशनल पार्क. हाथ नीचे. कनेरी केव्स गए आप लोग? How many of you been to कनेरी केव्स? कनेरी केव्स में जो केव्स है ना, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी को एक कॉलेज बांधना था, एक यूनिवर्सिटी बांधना था. So that is Swami ji's connection with Mumbai city. Last but not least, सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां पे है भारत में? सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां पर है? जमशेदपुर. Why is it called जमशेदपुर? जमशेद नाम कहां से आता है? टाटा वॉट? जमशेद टाटा से उसका नाम आता है जमशेदपुर. What did Jamshed ji Tata do there? He made a company. He built a factory there. बराबर? स्टील प्रोसेसिंग प्लांट उन्होंने वहां पे लगाया. वो किसके कहने पे लगाया था? वो स्वामी विवेकानंद जी के कहने पे लगाया था. एक बार स्टीमर पे स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा साथ में थे और जमशेद जी टाटा वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय स्वामी जी. तो जमशेद जी खुद स्वामी जी से मिलने गए. तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टील बहुत अच्छी मात्रा में बनता है और मैं देखने जा रहा हूँ वहाँ पे प्लांट कैसे होता है, वहाँ का कामकाज कैसे होता है. तो स्वामी जी बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्वामी जी ने उनको बताया कि गो टू एक्स स्पॉट विच इज टुडेज जमशेदपुर. आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी स्टील मिलेगा और वहाँ पे आप आपका प्लांट डेवलप कीजिए और आप इतना अच्छा प्लांट बनाइए कि भारत को स्टील इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, उल्टा भारत स्टील एक्सपोर्टर बन जाए. और साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गरीब गांव में, वहाँ पे सारे लोगों को जॉब भी दिए जाए. और ऐसे करके जमशेद जी उस एरिया में गए, उन्होंने वहाँ पे स्टील प्लांट सेटअप किया एंड इवेंचुअली दैट एरिया, दैट टाउन गॉट टू बी नोन एज जमशेदपुर. ठीक है? So remember all these things about Swamiji when we talk about Swamiji. Swamiji ना सिर्फ एक spiritual person थे, ना सिर्फ एक सन्यासी थे. He was a patriot. He was a nationalist सन्यासी. वो उनका अध्यात्म भारत की उन्नति से जोड़ते थे. देश प्रगति करेगा, यहाँ के लोग प्रगति करेंगे तो ही अध्यात्म का प्रॉपर यूज होगा, ऐसे उनको लगता था. So he also said one thing, he said everything is easy for everyone who is busy, but everything is not easy for those people who are lazy. How many of you are lazy? बाप रे, इतने सारे लोग lazy हैं आप लोग. Not a good thing. It's not a good thing to be lazy, हाँ. लेजी होना अच्छा बात नहीं है. आप लोगों ने एक्टिव होना चाहिए. आप लोगों को हनुमान की कहानी पता है? नहीं पता है? हनुमान जी इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप तक गए. सदर्न मोस्ट टिप तक गए. क्यों गए थे हनुमान जी सदर्न मोस्ट टिप तक? संजीवनी बूटी ढूंढते ढूंढते साउथ में गए थे. सीता माँ को ढूंढने के लिए साउथ तक गए थे और एक पॉइंट ऑफ टाइम रामेश्वर पे आके वो रुक गए.
और सामने उनको आइलैंड दिख रहा था और इवेंचुअली बाद में राम सेतु ब्रिज बांधा गया वहां पे, लेकिन उस टाइम पे उनको श्योरिटी नहीं था कि सीता माँ उस आइलैंड पे है या नहीं। तो लोगों ने बात की कि हम इतना बड़ा ब्रिज बांधेंगे तो ब्रिज वेस्ट हो जाएगा, इतना कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो जाएगा कि सीता माँ वहां पे नहीं निकली तो लोगों के एनर्जीज एफर्ट सब वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि वहां पे सीता माँ है या नहीं। फिर चर्चा की, अरे ब्रिज नहीं है, फिर जाएगा कौन वहां पे? तो लोगों ने बोला हनुमान जी जाएंगे। हनुमान बोला मैं नहीं जा सकता। उनको पूछा आप कैसे नहीं जा सकते? नहीं नहीं, मैं तो एक सामान्य वानर हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। फिर उसको थे क्या हनुमान जी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स? क्या पावर थी उनके पास? बड़ा और छोटा होने की ताकत थी, एक ये वाली ताकत होगी, और उड़ने की ताकत थी। तो लेकिन फिर हनुमान जी ऐसा क्यों बोले कि मुझे पता ही नहीं है? क्योंकि उनके बचपन में उनको एक लाल सा येलो सा बॉल दिख गया था और वो बहुत पसंद आ गया था और वो कूदने के लिए निकले थे, वो स्वॉलो करने के लिए, वो खाने के लिए। उनको लगा वो मैंगो बाइट है, लेकिन फिर उनको किसने रोका? इंद्रदेव ने रोका और उनको फिर रोका और नीचे गिरा दिया। फिर उनको ये कर दिया गया था, मतलब उनकी शक्ति रोक के रखने के लिए उनको मंत्र बोल के उनको रोका गया था कि हनुमान जी ये भूल जाए करके कि वो इतने पावरफुल है, इतने ताकतवर है। लेकिन रामेश्वर में जाके फिर क्या होता है? अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सीता माँ को ढूंढ के लाना है, चेक करना है सीता माँ वहां पे है क्या नहीं। और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल, वो बच्चे नहीं है, उनको पता है वो सूर्य है, सूर्य को मैं निगल लूंगा तो धरती पे लाइट नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा तो आपका खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बना तो यहाँ का जीवन नष्ट हो जाएगा। अब वो रिस्पॉन्सिबल थे, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए फिर मंत्र बोल के उनको रियलाइज करवाया गया कि देखो हनुमान जी, आप इतने बड़े इंसान हो, आप इतने ग्रैंड हो कि आपने इतने छोटे उम्र में आपने सन के पास कूदी लगा दी थी कि इंद्रदेव को आपको रोकना पड़ा था। तो ये तो श्रीलंका है, ये तो बहुत छोटा चीज है। एंड देन सडनली हनुमान जी रियलाइजेस, और फिर हनुमान जी बहुत बड़ी कूदी लगाते हैं और रामेश्वर से कूदते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद उनको सीता माँ मिल जाती है और फिर वो वहीं से वापस आते हैं, सीता माँ को राम की अंगूठी देते हैं और यहाँ पर राम को आके बताते हैं कि मैंने सीता माँ को देखा। ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई? क्योंकि हम भी हनुमान जैसे हैं। हम बचपन में मस्ती करते हैं तो हमको कहा जाता है ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, चुपचाप से बैठो, ये मत करो, वो मत करो। और कभी कभार हम कंडीशन हो जाते हैं उस सारे चीजों में। एंड एज वी ग्रो वी फॉरगेट दैट वी हैव दैट हिडन पोटेंशियल इन अस, एंड यू नीड टू हैव समबडी हु मेक्स यू रियलाइज दैट यू हैव दैट हिडन पोटेंशियल इन यू। सो स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि having belief in God is useless if you don't have any belief in yourself। तो आप में वो बिलीव होना चाहिए कि मुझे एसएससी में इतने मार्क्स मिलेंगे, आप में वो बिलीव होना चाहिए कि मुझे 12th में इतने मार्क्स मिलेंगे, आप में वो बिलीव होना चाहिए कि मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, आप में वो बिलीव होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स डे पे सबसे फास्ट भाग के फर्स्ट आ जाऊंगा, आप में वो बिलीव होना चाहिए कि मैं मैथ्स ओलंपियाड क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप में वो बिलीव खुद के बारे में नहीं है कि ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, सो नोबडी कैन हेल्प यू। पीपल कैन ओनली रिमाइंड यू दैट आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन कूदी हनुमान जी को ही मारनी पड़ी थी, वो किसी और ने नहीं किया उनके लिए। वैसे ही आपके लाइफ में कूदी आपको ही मारनी है। और आप लोगों को पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कहूँगा, स्पेशली यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं, यू शुड ऑलवेज चेस एक्सीलेंस। What is excellence? Being the best in your field। अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है और आपको क्लीनलीनेस अच्छा लगता है, तो आपने हनुमंत गायकवाड़ बनना चाहिए। हनुमंत गायकवाड़ कौन है? हनुमंत गायकवाड़ का नाम सुना है बड़े बच्चों ने?
Hanuman Gaikwad is the proprietor owner of Bharat Vikas Group. भारत विकास ग्रुप की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। हनुमान गायकवाड़ पुणे में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था वो। इतना अच्छा स्टूडेंट था कि इंजीनियरिंग पढ़ाई करते करते वो 11वीं 12वीं के बच्चों को ट्यूशंस भी देता था, बिकॉज उसको पैशन भी था और घर पे पैसे की भी आवश्यकता थी और पैसे कमाने लग गया। इवेंचुअली उसने टाटा मोटर्स में जॉब उसने ली। पुणे में टाटा मोटर्स का प्लांट है, वहां पे काम करने लगा। लेकिन उसको ना खुद का बिजनेस करना था, उसको खुद का धंधा करना था, उसको किसी के लिए जॉब नहीं करना था। लेकिन वो बहुत ही एक गांव से आता था, सामान्य घर का था, गांव बहुत गरीब गांव था वो। और उसको बहुत लगता था यार कि मैंने मेरे गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं पुणे में आया, मैं खुद का डेवलपमेंट किया, लेकिन व्हाट अबाउट माय फ्रेंड्स हु आर इन माय विलेज हु स्टडीड विद मी इन माय स्कूल। तब उसके ध्यान में आ गया कि वहां पे टाटा मोटर्स में एक नया प्लांट लगने वाला था। जैसे अभी टाटा नैनो अभी खत्म हो गया उसका प्रोडक्शन। तो टाटा नैनो की जो भी मशीन्स है वो पैक करके साइड में रखे जाते हैं और टाटा नेक्सा ये नई गाड़ी आ रही है तो नई गाड़ी के असेंबलिंग मशीन्स लगाए जाते हैं। तो बहुत सारा कचरा तैयार हो गया था और टाटा मोटर्स ने तय किया ये हम कचरा आउटसोर्स कर देंगे और फिर पूरा पेंटिंग भी करना था। तो इस हनुमान गायकवाड़ ने उसके मैनेजर को पूछा कि इस सबका पैसा कितना होगा, मतलब कितना रुपया हम देते हैं। और जो भी अमाउंट बताई, हनुमान गायकवाड़ को स्टंट, बाप रे इतना पैसा सिर्फ कचरा निकालने के लिए और पेंट करने के लिए। तो उसको कहा हाँ। तो इसने कहा यार मैं तो मेरे गांव से एक 5-6 फ्रेंड्स को लेके आता हूँ या 10 फ्रेंड्स को लेके आता हूँ, हम लोग मिलके एक काम करेंगे और इससे हम 40-50% कम में काम करेंगे। तो उसने वो टाटा मोटर्स के मैनेजर को पूछा कि हम ये कर सकते हैं क्या करके। तो टाटा मोटर्स वाले को पता था ये बहुत ही अच्छा इंजीनियर है और बहुत पैशनेट लड़का है और उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उसको अपने गांव वाले दोस्तों को कुछ जॉब देना है। तो हाँ बोलता है और हाँ बोलता है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल जाता है और ये खुद भी प्रोजेक्ट पैसे कमाता है और उनके गाँव वाले दोस्तों में भी बांटता है और ओवरऑल द मैनेजर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद इट। At this point of time, he realizes that boss, I can do something great. तो वो क्या करता है, वो इंडिया की सबसे बड़ी क्लीनिनेस कंपनी को जन्म देता है, दैट इज भारत विकास ग्रुप। ये कंपनी आज क्या करती है, आप कितने लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं राजधानी एक्सप्रेस में? आप लोग करते हो राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल? सो राजधानी में वो क्लीन करने के लिए लोग आते हैं, फिर डायरी में आपका साइन लेते हैं कि कैसे काम हुआ, अच्छा हुआ या नहीं। दैट इज भारत विकास ग्रुप। बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में भारत विकास ग्रुप का हाउसकीपिंग के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत के पार्लियामेंट में और भारत के प्रेसिडेंट के घर में, भारत के प्रेसिडेंट कहां पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में कितने रूम्स हैं? मोर देन 300 रूम्स। तो ये पूरे घर का क्लीनिनेस भारत विकास ग्रुप के लोग करते हैं। सो टुडे टेक्निकली स्पीकिंग उसका काम क्या है? कूड़ा निकालने का बिजनेस, कचरा निकालने का बिजनेस, बट इट इज इंडियाज नंबर 1 कंपनी विथ मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज। दैट इज द पावर ऑफ पैशन, दैट इज द पावर ऑफ फोकस, दैट इज द पावर ऑफ हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ। लाइकवाइज यू हैव दीज पीपल लाइक साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन है? बैडमिंटन प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग बैडमिंटन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स एवर। वो भी एक सामान्य घर में पैदा हुई थी। वैसे एमएस धोनी कौन थे? क्रिकेटर। वो कौन थे? टीसी थे। रेलवेज में टीटी करके काम करते थे बिकॉज वो बहुत ही सामान्य घर में पैदा हुए, घर में जॉब करके पैसे देने की आवश्यकता थी करके वो पैसे कमाने के लिए जॉब करते थे। लेकिन उनका पैशन क्या था? क्रिकेट। तो क्या उन्होंने वो पैशन छोड़ा? लेकिन टीटी बनके वो पैसे कमा रहे थे, वो रिलैक्स लाइफ थी, टाइम टू टाइम पे पैसे आ रहे थे, पैसे के पीछे गए। वो किसके पीछे गए? क्रिकेट के पीछे, अपने पैशन के पीछे गए। और पैशन के सिर्फ नाम के लिए नहीं पैशन किया उन्होंने। मतलब बहुत बार मैं लोगों को मिलता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ व्हाट्स योर पैशन? सो दे से माय पैशन इज ट्रेकिंग एंड आई आस्क देम व्हिच वाज द लास्ट माउंटेन यू ट्रेक? तो उसने बोला नो आई हैवंट येट ट्रेक द माउंटेन टिल नाउ।
then how is your passion in trekking? If you say your passion is football, you should tell me I play football every day for at least 1 hour. If you don't do that, it is not your passion. If reading is your passion, you should read every day for 1 hour. If you don't do that, that's not your passion. So likewise, MS Dhoni chased his passion. बस वो बोला नहीं कि मुझे क्रिकेट पसंद है और टाइम पास करके क्रिकेट नहीं खेला. He ensured that he got selected in the Indian cricket team. पहले वो अंडर 19 खेले, फिर क्रिकेट टीम में आए, फिर इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट विकेट कीपर बने. Eventually became the best batsman and eventually one of the most successful captains in the history of cricket. है कि नहीं? Was he born with a silver spoon in his mouth? क्या उसके मम्मी पापा अंबानी टाटा बिरला थे? नहीं थे. झारखंड से आता है. झारखंड is a tribal state. All of you should visit rural parts of India, tribal parts of India. वहाँ पे अब भी नरेंद्र मोदी जी की सेकेंड टर्म में सारे गांव में बिजली पहुंची है. आपके स्कूल में तो एसी है, पंखे हैं, वहाँ पे स्कूल में रूफ भी नहीं होता है. आपके क्लासरूम्स में डिजिटल बोर्ड्स रहेंगे, उनके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता है. आप सब लोगों के अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे फीस दे के आपकी एडमिशन कराई है. आपके स्पोर्ट्स के असेंबली के यूनिफॉर्म अलग है, कॉलेज के यूनिफॉर्म अलग है. आप लोगों ने येलो कुर्ता पहने हैं. आपके यहाँ पे इतना अच्छा ऑडिटोरियम है, इतना अच्छा साउंड सिस्टम है. देयर आर टीचर्स हु टेक एक्स्ट्रा ट्यूशंस क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. इतना सब कुछ यहाँ पे होता है. लेकिन आप ट्राइबल विलेज में जाके देखो, वहाँ पे कुछ नहीं होता है. वहाँ पे कभी कभी स्कूल में टीचर भी नहीं रहता है या रहती है. लेकिन उसमें से उभर के आना और उसमें से फ्रंट में आना और एक दुनिया का सबसे बड़ा रिनोन क्रिकेटर बनना ये बहुत बड़ी बात है. वैसे रोहित शर्मा इज फ्रॉम बोरिवली, बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली. स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में उसने पढ़ाई की है. इवन ही वाज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, बट विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क वो आज जो है वो बने. और ये सिर्फ क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं है. Who is the greatest scientist of India? कौन? There's Vikram Sarabhai, that's APJ Abdul Kalam. फिर अभी जो रॉकेटरी करके मूवी आई थी लंबी, देखी रॉकेटरी? अच्छी मूवी थी. तो रॉकेटरी मूवी में 2 साइंटिस्ट दिखाया, नंबी नारायण भी दिखाया और एपीजे अब्दुल कलाम भी दिखाया. क्या इन दोनों में से कोई पैसे के पीछे भागे? वो चाहते तो करप्शन कर सकते थे, बहुत सारा पैसा लेके बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपने पैशन के पीछे भागे. मैं जो काम करूंगा वो अच्छा करूंगा. एपीजे अब्दुल कलाम ने डिसाइड किया कि भारत में उस टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब भारत में बना के दूंगा. सो खुद का प्रोग्रेस लिंक्ड विद द नेशंस प्रोग्रेस, लिंक्ड विद द सोसाइटीज प्रोग्रेस. ऐसे हमारे देश में एग्जांपल्स होकर गए हैं. एंड दैट इज आई थिंक व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, that you are studying in Ram Ratna Vidya Mandir, the school which has so many resources. You all come from good families. आपको you are not victims of child labor. बाहर बच्चे रहते हैं कि उनके घर में पैसे नहीं होते हैं करके बेचारे बाहर जाके चाय के स्टॉल पे काम करते हैं, बूट पॉलिश का काम करते हैं. वो करते करते पढ़ाई करते हैं लोग. यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आप वैसे केस में कहीं पर नहीं हो. आपके एनर्जीज आपको बूट पॉलिश करने में या कहीं पे चाइल्ड लेबर करने में आपको स्पेंड नहीं करना पड़े. आप लोगों की उम्र क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर 7-8 years old? 7 to 10 कितने लोग हैं? 7 to 10 years of age. 10 to 14 कितने लोग हैं? 10 to 14 years of age. 14 to 15 years of age कितने? And 15 and above. 15 and above कितने? अच्छा, ये सारे येलो कुर्ता वाले 15 and above. शिवाजी महाराज ने सबसे पहला किला कौन सा जीता था? नहीं, रायगढ़ उनकी राजधानी थी. रायगढ़ वाज हिज कैपिटल. तोरणा नाम का किला सुना? तोरणा फोर्ट वाज द फर्स्ट फोर्ट व्हिच वाज कैप्चर्ड बाय शिवाजी महाराज. हाउ ओल्ड वाज शिवाजी महाराज व्हेन ही कैप्चर्ड तोरणा? He was 16 years of age. Can I expect all the yellow kurtas to do the same? Capture a fort? See, capture a fort मतलब सिर्फ capture a fort नहीं किया. अकेला आदमी जाके capture नहीं कर सकता है fort. उन्होंने एक टीम बिल्ड की उनके सरदारों की. इतने सारे जो अभी आपने मूवीज देखे, तानाजी
बाजी प्रभु देशपांडे, बहुत सारे लोग उनकी उम्र से बड़े थे, लेकिन वो शिवाजी के जूनियर बन के शिवाजी को अपना महाराज मानते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे और उन्होंने अपनी एक फौज तैयार की। इमेजिन अ 16-year-old बॉय हैंडलिंग कैप्टन्स, सरदार एंड एन आर्मी। Imagine one of you doing that. Can you imagine that? So that is the potential which all of you have. You are 16 years of age. Why do you think you should be less than Shivaji Maharaj? You are living on the land of Shivaji Maharaj. आपको प्रॉब्लम क्या है? आप भी वो कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, you should never be afraid of failures. आपको बहुत बार लगता है ना, मैंने पढ़ाई की लेकिन मैंने एग्जाम क्रैक नहीं किया। IITs में होता है, मैंने पढ़ाई की लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो इससे हमने निराश नहीं होना चाहिए। We should continue to have belief in ourselves. Sachin Tendulkar did not have a century in his opening match, okay? It wasn't a very great match. But eventually Sachin Tendulkar today is the greatest batsman ever born in international cricket. वैसे ही ये जो ऊपर लाइट लगे हैं, ये क्या लाइट्स हैं? ऊपर लाइट्स क्या लाइट्स है? LED लाइट्स है, हेलोजन है। इसके पहले क्या था? फर्स्ट बेसिक लाइट क्या था? इट वाज अ बल्ब। बल्ब किसने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन। अरे जूनियर किड्स नो मोर देन द सीनियर किड्स इट सीम्स। सो थॉमस अल्वा एडिसन ने येलो बल्ब इन्वेंट किया था, लेकिन उसका स्टोरी आपको पता है? He failed 99 times. वो बल्ब बनाते थे, वर्क नहीं हो गया। सेकेंड टाइम बनाया, वर्क नहीं हो गया। थर्ड टाइम बनाया, वर्क नहीं हो गया। ऐसे उन्होंने 99 टाइम्स बल्ब बनाए, फेल हो गए। अब आप और मैं जैसे कोई रहता तो हम शायद सोचते यार 10 बार करके छोड़ दो, नहीं हो रहा, चलो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि नहीं, आई कैन डेफिनेटली क्रैक दिस। ऐसे कैसे नहीं हो रहा है ये? एंड इवेंचुअली इन द 100th attempt he was successful. And I think we should all take inspiration from the likes of Thomas Alva Edison, the likes of Sachin Tendulkar, the likes of Swamiji. They all chased excellence. Success and money was a byproduct. आप रोज उठ के प्रैक्टिस करोगे, आप आपके काम में परफेक्ट होगे, तो आप आपके काम में सक्सेसफुल जरूर होंगे। And once you are successful in your field, money follows. Sachin Tendulkar did not practice modeling. He practiced cricket. MS Dhoni did not practice modeling. He is still a shy person in front of the camera because वो उनका काम नहीं, उनका काम है बैटिंग करना और विकेट कीपिंग करना और इंडियन टीम की कप्तानी करना। प्रेस में आके अच्छा दिख के अच्छे बातें करना उनका काम नहीं है, ना उन्होंने कभी उस पर फोकस रखा है। But then because he was successful in his field, you know, money followed. Why was he successful? Practice. So I'll give you a small formula for this, okay? All of you need to set goals in your life कि मुझे ये करना है, वो करना है, आगे जाके मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। आप छोटे बच्चों ने भी करना है ये गोल्स, आप ये जो मिड लेवल बच्चे हैं उन्होंने भी करना है, और सबसे ज्यादा ये जो 8th स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे उन्होंने ज्यादा करना है। यू शुड सेट अ गोल इन योर लाइफ कि आपको क्या बनना है 2 साल बाद, 5 साल बाद, आपको क्या पढ़ाई करनी है। And this goal should be SMART goals. Does anyone of you know the full form of SMART? SMART की स्पेलिंग क्या है? S-M-A-R-T. So SMART goals, okay. अब S for specific. आप जब प्लानिंग करो आपकी गोल की, so you should plan it specifically कि आपको क्या करना है। मुझे IIT क्रैक करना है, that's a very specific goal. It should be measurable. M for measurable. Measurable मतलब क्या? आप IIT कब क्रैक कर पाओगे? जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम में X अमाउंट ऑफ मार्क्स आपको आएंगे, तो ही आप वो क्रैक कर पाओगे। So there is some measurement involved. A for attainable और actionable और achievable. तो ये IIT क्रैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई शायद 2 घंटे भी काफ़ी होगी, 3 घंटे भी काफ़ी होगी, 4 घंटे भी काफ़ी होगी। हर एक का ग्रास्पिंग नॉलेज अलग होता है, ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। तो मैंने उसका प्लानिंग करना कि मुझे इसमें कितने घंटे डालने पड़ेंगे। 4 R for relevant।
रेलिवेंट मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको आगे जाके फुटबॉलर बनना है तो आपको आईआईटी क्यों क्रैक करनी है, या आपको आगे जाके साइंटिस्ट बनना है तो आपने फुटबॉल क्यों खेलना है। तो आपको जो बनना है आगे जाके और आप जो गोल सेट कर रहे हो वो रेलिवेंट है या नहीं, वो अपने चेक करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टी फॉर टाइम बाउंड। जो भी आप गोल सेट करो वो टाइम बाउंड मैनर में करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईआईटी क्रैक करूंगा या आईआईटी क्रैक करूंगी, बट इट कैनॉट बी अ 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर प्लान। आपने डिसाइड करना है कि 12th के बाद 6 महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स 1 साल का ड्रॉप लेके मैं आईआईटी क्रैक करूंगी, नॉट मोर देन दैट। योर गोल शुड बी इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर मुझे अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना है तो मुझे 2 साल के अंदर अच्छा बैडमिंटन सीख के बनना है। इट कैन नॉट बी फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स। सो एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर measurable, A for achievable, R for relevant, T for time bound. So you have this computer system here. Feed this formula in your computer system. Whenever you sit for goal settings or planning for your future, evaluate your goal setting on SMART, these 5 words. 2 more stories and I'll conclude what I'm here for. गोल सेटिंग के सबसे बड़े उदाहरण हमारे हिस्ट्री में या हमारे कल्चर में जो है, कौन है वो? सबसे अच्छा गोल सेटिंग जिसने किया, महात्मा गांधी। महाभारत की स्टोरी है। कौन कौन कौन? अर्जुन। यस, अर्जुन वाज अ गोल सेटर। तो अर्जुन ने क्या गोल सेट किया था और कैसे अचीव किया? टारगेटिंग ऑन वन स्पेसिफिक गोल। जो स्वामी जी ने बोला ना, टेक अप वन आइडिया, फोकस ऑन इट। तो जब अर्जुन को ट्रेनिंग दे रहे थे द्रोणाचार्य, तो वहां पे एक पेड़ पे एक पंछी बैठा था और पंछी के आंख में तीर मारना था। तो अर्जुन को कहा कि एग्जैक्टली वहां पे देख के उस आंख में तीर मारो, और एग्जैक्टली वहां पे तीर मारा गया। इट वॉज दैट फोकस कि उसको एग्जैक्टली जो पॉइंट था वो अर्जुन अचीव कर पाया। दूसरा, महाभारत से स्टोरी है, गोल सेटिंग। एकलव्य की स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी है? सो एकलव्य करके एक स्टूडेंट रहता है, लेकिन जैसे आपकी एक स्कूल है ना RRVM, उसमें एडमिशन के लिए फी लगती है, आप अच्छे स्टूडेंट्स भी होने चाहिए और ऐसे करके आपको यहाँ पे एडमिशन दी जाती है। तो पुराने ज़माने में ऐसे कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं थे स्कूल के। पुराने ज़माने में ऐसे ही आपको बिठाया जाता था एक आंगन में, और आपको वहाँ पे गुरु जो है पढ़ाते थे। तो एक दूसरे गांव का एक लड़का था, उनके गांव में इतना अच्छा टीचर नहीं था, बट ही विश टू बी एज गुड एज अर्जुन। तो वो क्या करते थे, जैसे आपके यहाँ पे बाउंड्री वॉल है ना, तो उस टाइम पे बाउंड्री वॉल भी नहीं रहती थी, वहां पे पेड़ रहते थे। वो पेड़ के पीछे छुप के देखता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को कैसे पढ़ा रहे हैं, और वो खुद सेल्फ प्रैक्टिस करता था। और सेल्फ प्रैक्टिस करते करते ऐसे ध्यान में आ गया कि परहैप्स ही इज अ बेटर स्टूडेंट देन अर्जुन। बल्कि द्रोणाचार्य ने पर्सनल ट्यूशंस कभी एकलव्य को दिए ही नहीं थे। द्रोणाचार्य डिडंट इवन नो कि पेड़ के पीछे छुप के देख के छुप के एकलव्य मेरे जो अर्जुन को टीचिंग्स है वो सीख रहा है, समझ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जिन लोगों को जो बोलते हैं मुझे और 5% अच्छे मार्क्स आ सकते थे अगर मुझे एक iPad दिया जाता था, मुझे और 10% अच्छे मार्क्स आते थे अगर मुझे ये गाइड सीरीज देते या ऑनलाइन का ये एग्जाम सीरीज लगवाते थे। सो दे आर ऑल रीजंस। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइंड अ वे, जस्ट लाइक एकलव्य डिड। Perhaps Eklavya did not have any means to get admission to Dronacharya's academy, and hence he stood behind a tree, slowly observing what Dronacharya is teaching. He never paid fees to Dronacharya, but you know what happened eventually. Dronacharya ने उनको गुरु दक्षिणा मांगी और उनको अपना थंब देना पड़ा। Lastly, हमारे इसमें एक प्रॉब्लम कभी-कभी क्या हो जाता है कि
हमको बताया जाता है कि यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपने स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या स्पोर्ट्स के कभी कभी बच्चे बोलते हैं आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता। यू ऑलवेज हैव टू बी अ ऑलराउंडर। कैन यू नेम सम ऑलराउंडर्स फ्रॉम आवर कल्चर? कैन यू नेम सम ऑलराउंडर्स फ्रॉम आवर कल्चर? आपके देवी देवताओं में सबसे बड़ा ऑलराउंडर कौन था? कृष्ण एक ऑलराउंडर थे। कृष्ण वाज अ फैंटास्टिक वॉरियर। कृष्ण बहुत सुंदर फ्लूट बजाते थे। जिनको गुस्सा करना है वो गुस्सा करते थे, जिनको प्यार करना है वो प्यार करते थे। मतलब जो हम बोलते हैं ना, दोस्तों के दोस्त दुश्मनों के दुश्मन, वो है आपके भगवान श्री कृष्ण। मोर, महादेव लोग बोलते हैं कि वो तीसरी आंख खोलते थे, सामने जो भी आ गया वो आंख से नष्ट हो जाता था। He had the power, तांडव करके वो पूरी पृथ्वी हिला दे, वो पूरी दुनिया नष्ट कर दे। बट एट द सेम टाइम he was a fantastic dancer। उनकी फिजिक भी वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स थे उस टाइम पे। सो अमेजिंग बॉडी बिल्डर भी आप बोल सकते हो। अमेजिंग बॉडी बिल्डर, बेस्ट डांसर, और जो गलत काम करता है उनको शिक्षा भी देते थे। ये उन्हें ताकत था। एंड मोर, what about Ganesha? What about him? Tell me. Why is Lord Ganesha an all-rounder? Is he or is he not? He is. Why? What is Ganesha known for? Smartness and knowledge and राइटर। बराबर। क्या लिखा था उन्होंने? महाभारत लिखी थी। ये तो एक ही फील्ड हो गया ना, नॉलेज, स्मार्टनेस, राइटर, ये सब दिमागी हो गया। सो ऑलराउंडर कैसे हो गए? व्हाट इज हिज नेम? विच गॉड आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ? गणेश। गणेश इज ऑल्सो नोन एज Vignarta. He is also known as, popular in Maharashtra as Ganapati. Ganapati is word similar to Senapati. सेना का पति, सेना का कमांडर इस सेनापति। वैसे शिव भगवान की आर्मी थी, उनको क्या बोलते थे? गणास बोलते थे, गण बोलते थे। तो ये सारे आर्मी का सेनापति, कमांडर वाज लॉर्ड गणेश। सो लॉर्ड गणेश वाज अ ग्रेट वॉरियर, and at the same time he was a very brilliant person, he was very smart, and he wrote the Mahabharata. One last example and then we'll close the session. चलो। रावण, ठीक है, वो विलन था। वो विलन के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम बोलेंगे। वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत अच्छा वॉरियर था, लेकिन बहुत इगोइस्टिक था। सो रावण इज नॉट एन एग्जाम्पल विच आई वुड वांट टू गिव यू। भगवान श्री राम, राम के ऑलराउंडर कैसे थे? भगवान श्री राम से आपने क्या सीखना चाहिए? वो राजा बन के महल, वो उनका जन्म हुआ था राजा बन के, वो महलों के थे, लेकिन जब उनको वनवास करना पड़ा, एक उन्होंने प्रॉमिस दिया था अपने पिताजी को। पिताजी ने बोला 14 साल वनवास करो, तो प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, आपने जो बोला वो मैं करूंगा। और विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन वो वनवास चले गए। वनवास में वो जैसे एक झोपड़ा बांध के वहां पर रहे। तो एक इमेजिन अ राजा, इमेजिन अंबानी लिविंग इन अ ट्राइबल विलेज। कैन यू इमेजिन दैट? नाउ इमेजिन जो सोने चांदी और इसके बीच में रहने वाला एक राजा था, जिसके आजू बाजू में सर्वेंट्स थे जो खाना बना के देते थे। आज जाके एक गांव में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, और वहां पे खुद उनको अपना खाना बनाना पड़ता है। इमेजिन द क्वीन एज वेल, सीता वाज अ क्वीन। तो हम कभी सुना है कि रानी खुद का खाना बनाती है? उनके पास बहुत सारे दास दासियां रहती है जो सब सेवा करते हैं उनकी, बट बस एक प्रॉमिस दिया। मेरे पति ने प्रॉमिस किया था उनके पिताजी को, मेरे भाई ने प्रॉमिस किया था उनके पिताजी को, करके ये दो भी राम के साथ जंगल में गए। सो गुड एग्जांपल ऑफ एन ऑलराउंडर राम इज दैट वो शहरों में भी उतने अच्छे से रहे, वो गांव में भी उतने अच्छे से रहे। वो राजा बन के उन्होंने अच्छे से अपना काम भी किया, और गांव में जाके वहां पे जो सन्यासी थे उन लोगों को भी उनके साथ रह के बहुत अच्छे से मदद की। हनुमान जी इज नॉट एन ऑलराउंडर? हाउ इज एन ऑलराउंडर?
हनुमान जी का आपको वेलर पता ही है, बॉडी बिल्डर जितने भी अखाड़े होते हैं, जिम्स होते हैं, वहाँ पे हनुमान जी की फोटो होती है, मूर्ति होती है, वहाँ पे पूजा की जाती है और सब लोग सिर्फ बॉडी के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन हनुमान जी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। दे से द मोस्ट ब्यूटिफुल रेंडरिंग ऑफ द रामायण वॉज रिटन बाय हनुमान जी। और जब लोगों ने वो रामायण पढ़ी तो उनको कहा गया कि अरे हनुमान जी इतनी सुंदर रामायण है, इतनी सुंदर कविता कहाँ से लिखी, कैसे लिखी, यू आर सच अ जीनियस यार। और हनुमान जी ने बोला उप्स, मेरा ऑब्जेक्टिव था ये कविता लिखने का कि कविता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लोग भगवान श्री राम की तारीफ करें, लेकिन आप लोग मेरी कविता की तारीफ कर रहे हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम इज डिफीटेड, लेट मी टेयर इट, लेट मी डिस्ट्रॉय इट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। सो जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग इंसान थे वो उतने ही इंटेलिजेंट इंसान भी थे, और हमारे हिस्ट्री में वैसे ये सब आदर्श है और हमने इनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी द बेस्ट ऑलराउंडर। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, ओके, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो आपको रामकृष्ण परमहंस वाली स्टोरी पता है कि एक माँ रामकृष्ण परमहंस जी के पास अपने बच्चे को लेके जाती है और स्वामी जी को बताते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को कि मेरा बच्चा ना बहुत शुगर खाता है, तो आप उसको बताइए ना थोड़ा कि पेट खराब हो जाता है, वर्म हो जाते हैं पेट में, अच्छी बात नहीं है, दांत टूट जाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले ठीक है, कल आना। वो माँ अपने बच्चे को लेकर दूसरे दिन भी जाती है, तो माँ बोलती है स्वामी जी आज आप बताएंगे क्या? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं नहीं, एक वीक बाद आना। तो वो बोलती है अरे इतनी छोटी सी बात बतानी है? तो बोलते हैं एक वीक बाद आना। अब रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े स्वामी थे तो उनकी बात तो माननी पड़ती थी, तो एक वीक के बाद फिर से माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है। स्वामी जी फिर बोलते हैं कि और 2 दिन बाद आना। अब वो तो इरिटेट हो रही है, यार इतनी छोटी बात बताने के लिए मैंने आपको कही कि मेरे बच्चे को सिर्फ बताना था कि ज्यादा मीठा मत खाना, पेट दुखने लगेगा या दांत गिर जाएंगे, आप इतना टाइम लगा रहे हो। इवेंचुअली वो फिर से आती है और इस बार स्वामी जी उसको बताते हैं कि बेटा आप ज्यादा स्वीट मत खाना, आपका पेट खराब हो जाएगा और आपके दांत गिर जाएंगे। और वो बच्चा निकल जाता है। फिर स्वामी जी के जो अनुयायी होते हैं, उनके जो जूनियर्स होते हैं, वो स्वामी जी को पूछते हैं कि ये इतनी छोटी बात आपको कहनी थी, आपने इस बात के पीछे 10 दिन क्यों लगाए और 3 या 4 बार इस महिला को आना पड़ा अपने बच्चे को लेके? सो स्वामी जी ने कहा कि जो चीज मैं खुद फॉलो नहीं करता हूं उसकी एडवाइस मैं किसी को नहीं दूंगा। सो डोंट एडवाइस समथिंग टू एनीवन व्हिच यू डोंट फॉलो इन योर ओन लाइफ। फिर स्वामी जी ने बताया मुझे भी मीठा खाने की आदत है, मैं भी मीठा खाता था और मैं भी ऐसे मुझे मन करे तो मैं मीठा खाता हूँ। अब मैं खुद इतना मीठा खाता हूँ तो मैं बच्चे को कैसे बोलूँ कि तुम मत खाओ? तो सबसे पहले मैंने खुद का मीठा कंट्रोल किया। बोले मुझे लगा एक दिन में हो जाएगा, लेकिन एक दिन में हुआ नहीं, इसलिए मैंने उनको कहा कि 1 वीक के बाद आना। 1 वीक के बाद थोड़ा मतलब लगभग कंट्रोल आ गया था, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं आया था। मुझे और 2 दिन चाहिए थे कंट्रोल करने के लिए, इसलिए फिर मैंने उनको कहा और 2 दिन के बाद आना। और जब वो 2 दिन के बाद आए तब मेरा शुगर का टोटली कंट्रोल हो गया था, मैंने शुगर खाना बंद कर दिया था। एंड नाउ दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इट इन माय लाइफ, आई कैन गिव एन एडवाइस अबाउट इट। आप लोग भी फिर ये सब फॉलो करेंगे ना या नहीं? क्विकली इन 5 मिनट्स मेरे लिए रिवीजन करो कि आपने आज क्या क्या सुना, सीखा, समझा, एक एक करके। आप लोग कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं समझे, फिर कविता मैम मुझे बोलेंगे कि सर का लेक्चर वेस्ट गया करके, खाली फुकट का बोला, किसी और को बुलाना चाहिए था। क्या क्या स्टोरीज आपने सुने बताइए मुझे, एक एक करके। एकलव्य का स्टोरी, स्वामी विवेकानंद का स्टोरी, रामकृष्ण परमहंस जी का, हनुमान जी का, राम का, महाभारत का स्टोरी सुना,
यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टोरी, ठीक है। तो अभी ये सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सबसे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। आप खुद के लिए तालियां बजाइए। आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। अब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोग क्या क्या समझे। इन्होंने बताया इन्होंने क्या क्या सुना। आप लोग थोड़े बड़े बच्चे हो, तो ये जो भी स्टोरी सुने उसमें से आप क्या क्या समझे, आप बताइए। Set a life goal. Believe in yourself. Don't advise others which you don't follow. Yeah, don't advise others about things which you don't follow in your own lives. And Meaning of smart, meaning of smart, setting smart goals. all rounder. Always be an all-rounder. Chase excellence. Chase excellence. Success will follow. Money will follow. And Keep practicing things. keep practicing. There is no substitute to hard work. Leadership होनी चाहिए. Focus. Follow your passion. You should have focus. ठीक है, अच्छी बात है. So I think my session here has been more or less successful. On this note, I'll conclude my address. I once again thank the school management, Kavita ma'am, and all the teachers for having me here. And all of you to sit here and patiently listen to me. I hope ये जो आपने अभी रिविजन किया वो थोड़ा बहुत आप चीज़ें याद रखोगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे. थैंक यू वंस अगेन. मेरा आदरपूर्वक नमस्ते. मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ. पिछले 1 घंटे से हम सभी ने ज्ञान धारक के रूप में सर से ज्ञान ग्रहण किया. हमारे प्रमुख अतिथि के प्रभावशाली भाषण ने हमें आकर्षित किया. आदरणीय सर, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है. एक नहीं कई सारे व्यक्तित्वों के विषय में आपने बताया. यदि हमारे विद्यार्थी अपने जीवन में अमल करेंगे तो वे कुशल व्यक्ति अवश्य होंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को यहाँ आमंत्रित करके जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है वो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ. हमारे जिन सदस्यों ने योगदान दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. उपस्थित विद्यार्थीगण, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करूँगी कि वे आकर हमारे अतिथि को आभार पत्र प्रदान करें. Many good personalities, and also not just the personalities, but the things we call as we call our history as mythology, right? Like Indian mythology, Hindu mythology. Though it's not mythology, right? It's actually the two events which actually happened. So since we all are celebrating National Youth Day, so here's one small video, not small, but it's a very good video that Gunjan ma'am and Ramchan and other hostel parents have made. So we are going to have a look on that now.
आकर बैठ गए। उस समय उनका अयाचक व्रत था। यह ऐसा व्रत होता है कि जिसमें हम किसी से कुछ भी मांगकर नहीं खा सकते। लिहाजा वह व्रत में किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे और वह एक बगीचे में आकर विश्राम करने लगे। बगीचे की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उनके पास बैठ गया और वह व्यक्ति उनको टुकर देखने लगा। और वह व्यक्ति उन्हें चिढ़ाने के लिहाजे से उनके सामने अपना खाना खाने लगा। स्वामी जी 2 दिन से भूखे रहे और वह व्यक्ति कई तरह के पकवान खाते हुए बोलता जा रहा था, बहुत बढ़िया मिठाई, बहुत बढ़िया। उस समय स्वामी जी ध्यान मुद्रा में वह अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे और वह मन ही मन में बोल रहे थे कि गुरुदेव, जो आपने सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते हुए विवेकानंद जी शांत बैठे रहे। स्वामी जी के पास जो व्यक्ति बैठा था वह व्यक्ति खाना खाने के बाद आराम करने लगा। दोपहर का समय था और उसी दौरान उसी नगर में एक सेठ को भगवान श्री राम ने दर्शन दिया और कहा कि मेरा एक भक्त संत आया है और तुम्हें उसे भोजन कराना है। उसका अयाचक व्रत है, वह किसी से भी मांगकर नहीं खा पाएगा, तो आप जाइए और उसे भोजन कराओ। पहले तो सेठ ने सोचा कि यह महज एक कल्पना है, लिहाजा फिर से करवट बदलकर सो गया। लेकिन तभी भगवान ने सेठ को दोबारा दर्शन दिया और संत को फिर से भोजन कराने की बात कही। तब से उन्हें ढूंढते हुए उसी बगीचे में पहुँचे जहाँ पर भगवान राम ने उन्हें बताया था। जब सेठ स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कभी भी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, जबकि आपके कारण स्वयं भगवान राम मेरे पास आए। और सेठ ने पूरा स्वप्न उनको सुनाया। तब उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मैंने याद तो अपने गुरुदेव को किया। गुरु और ईश्वर की ये कैसी महिमा है कि एक को याद करो तो दूसरा दौड़ा चला आता है।